Structure mechanics, structure analysis 1. Today we are going to see our next topic, यानी कि next example. Draw shear force, bending moment and axial force diagram for the rigid jointed frame shown in figure. So here figure is given, frame is given, so A, B, D, E frame is given. The span of AB is 5 meter, span of BD is 10 meter, span of D is equal to 5 meter. So on span AB 10 kilonewton per meter UDL acting on it, and span BD 50 kilonewton लोड एक्ट ऑन इट. सो हमें क्या करना है, गिवन फ्रेम के लिए हमें शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट एंड एक्सल फोर्स डायग्राम ड्रॉ करना है. ठीक है. नाउ बिफोर वी गोइंग टू सी नेक्स्ट थियरी, इन अ प्रीवियस वीडियो वी सॉ दैट प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एंड Maxwell reciprocal theorem. So what is principle of superposition? The principle of superposition is stated as follows: the displacements resulting from each of number of forces may be added to obtain the displacements resulting from the sum of forces. Delta 1 plus 2 is equal to delta 1 plus delta 2. The forces that corresponds to a number of displacements may be added to yield the force that corresponds to the sum of displacement. So the following requirement must be imposed for the principle of superposition to apply. The first is the material must behave in a linear elastic manner so that Hooke's law is valid, and therefore the load will be proportional to the displacement. The geometry of the structure must not undergo significant change when the load are applied. So small displacement theory applies. Large displacement will significantly change the position and orientation of the load, and the support are unyielding. ठीक है. These are the requirement for the principle of superposition. The first is the material must have behaved in a linear elastic manner so that Hooke's law is valid, and therefore the load will be proportional to displacement. The geometry of the structure must not undergo significant change when the load are applied. Small displacement theory applies. Large displacement will significantly change the position and orientation of the loads, and the supports are unyielding. The next is Maxwell's reciprocal theorem. James Clerk Maxwell, a Cavendish professor at Cambridge University, offered this law in 1964. The Maxwell theorem of reciprocal deflection can be stated by three ways as follows. The first is the deflection at A due to unit load at B is equal to deflection at B due to unit load at A. Delta AB equal to delta BA. Then the slope at A due to unit couple at B is equal to the slope at B due to unit couple at A. Phi AB is equal to phi BA. Now third is the slope at
A due to unit load at B is equal to the deflection at B due to unit couple at A. Phi dash AB equal to delta dash B. Now our next example is draw shear force, bending moment and axial force diagram for the rigid jointed frame shown in figure. So here frame is given A B C D. ठीक है. सो प्रीवियस वीडियो में हमने एग्जांपल लिखा था. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, कोई भी एक पॉइंट कंसिडर करके हमें वर्टिकल लोड फाइंड आउट करना पड़ेगा. ठीक है. किसी एक पॉइंट को फिक्स करके हमें मोमेंट लेनी होगी. मोमेंट लेके हम वर्टिकल लोड फाइंड आउट करेंगे. सो हियर टू सपोर्ट आर देयर, roller support and hinge support. Support A have roller support and support E have hinge support. So now taking moment about point E, taking moment about point E से हमें मोमेंट लेना है. सो हमें ए पॉइंट को फिक्स करना है. सो समेशन ऑफ एम ए इज इक्वल टू 0. समेशन एम ए इक्वल टू 0. ठीक है. सो अब हमें क्या करना है, फोर्स यानी कि वी पे एक फोर्स लग रहा है ई, इसको हम क्या बोलेंगे वी ई. ठीक है. अब मोमेंट लेना है, कितने डिस्टेंस पे लगेगा, इट इज 10. ये जो फोर्स लग रहा है, ये जो फोर्स वो किस पे एक्ट हो रहा है, दिस डिस्टेंस. सो इट इज 5 + 5, सो इट इज 10. So VE into 10, it is upward force. Now second कौन सा फोर्स लग रहा है, 50 किलो न्यूटन. ठीक है. तो कितने डिस्टेंस पे लग रहा है, हमने ये पॉइंट को फिक्स किया है, इस पॉइंट को हमने फिक्स किया है. यहाँ से हम मोमेंट फाइंड करेंगे. सो 50 कितना डिस्टेंस से फिक्स पॉइंट से, इट इज़ 5. सो 50 × 5, सो ये हो गया 50 × 5. नाउ 10 किलो न्यूटन का नेक्स्ट लग रहा है यूडीएल. ठीक है. 10 ये पॉइंट हमने फिक्स किया है. अब कितने डिस्टेंस पे लग रहा है, 5 का हाफ 2.5. ठीक है. बट हमें यूडीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना है. सो इट इज 10 × 5. ये यूडीएल कन्वर्टेड इनटू पॉइंट लोड इनटू डिस्टेंस कितना रहेगा, इज 2.5. सो ये आ गया. समेशन एम ए इज इक्वल टू 0. सो वी ई इंटू 10, दिस इज वी ई इंटू 10 इज इक्वल टू 50 × 5, 50 × 5 एंड 10 × 5 इंटू डिस्टेंस 2.5. ठीक है. तो सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें वी ई की वैल्यू मिल जाएगी, इट इज 37.5 किलो न्यूटन. नाउ अब हमें वी ए फाइंड करना है. ठीक है. वर्टिकल लोड एट पॉइंट ए. ठीक है. सो टोटल वर्टिकल लोड माइनस वी ए. टोटल कितना लोड है, इट इज़ 50. इट इज़ 50 वट ओनली वर्टिकल लोड कितना है, 50. अब हमें वी ए की वैल्यू मिल गई है, कितनी है, मोमेंट लेके हमने फाइंड की 37.5. सो टोटल लोड 50 माइनस 37.5, सो इट इज 12.5 किलो न्यूटन. हमें वी ए मिल गया 12.5 किलो न्यूटन. चलो तो हमें वी ए मिल गया एंड वी ई मिल गया. बराबर. वर्टिकल लोड हमें मिल गया. अब देखोगे 12.5 + 37.5 करेंगे तो हमें 50 मिल जाएगा. सो नाउ अब हमें क्या करना है, सेकंड थिंग सी समेशन एच इक्वल टू 0. समेशन एच इक्वल टू 0. हॉरिजॉन्टल फोर्स जितने भी हो इतने हमें कितना कंसिडर करना है, 0. ठीक है. सो हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना है, एक ही है, इट इज़ 10 किलो न्यूटन. कितने डिस्टेंस पे लग रहा है, 5. सो 10 × 5, सो इट इज़ 50 किलो न्यूटन. 2 स्टेप हो गए. अब हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे. फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो फर्स्ट हम क्या कंसिडर,
ए बी फ्रेम का जो पार्ट है ए बी, वो हम कंसिडर करें ए बी। 10 किलो न्यूटन का यूडीएल लग रहा है, ठीक है। अब वर्टिकल लोड हमने फाइंड किया था, वो हम कंसिडर करेंगे 12.5। देन हॉरिजॉन्टल फोर्स 50 किलो न्यूटन, ठीक है। मोमेंट कितनी आएगी, ठीक है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, ठीक है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, ठीक है। तो इट इज 125 किलो न्यूटन पर मीटर। 12.5 कितने डिस्टेंस पे लग रहा है, 10 डिस्टेंस पे, सो इट इज 125 किलो न्यूटन इंटू मीटर। एम बी इज इक्वल टू -10 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2.5। नाउ नेक्स्ट इज पार्ट ऑफ फ्रेम बी एंड डी, ठीक है। तो उस पर कितना लोड एक्टर है, 50 किलो न्यूटन। हॉरिजॉन्टल फोर्स है 50 किलो न्यूटन, वर्टिकल फोर्स है 12 किलो न्यूटन, ठीक है। अब हमें मोमेंट फाइंड करना है एट पॉइंट सी, ठीक है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, 12.5 कितने डिस्टेंस पे, 5 माइनस 125 ऑलरेडी मोमेंट है पॉइंट बी के पास, ठीक है। सो इट इज -62.5 किलो न्यूटन इंटू मीटर। सो नाउ सिंपली हम अब फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ हो गया। देन आफ्टर हम फाइंड आउट करेंगे शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है। सो इन शियर फोर्स डायग्राम यूडीएल आएगा, सो इट इज इंक्लाइन लाइन, पॉइंट लोड होगा स्ट्रेट लाइन, ठीक है। एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम यूडीएल होगा, इट इज इन कर्व शेप एंड इंक्लाइन से। नाउ अब क्या करना है, हमें एक्सेल फोर्स डायग्राम को करना है। सो बाय इंस्पेक्शन ऑफ फिगर वन कैन सी दैट द एक्सेल फोर्स आर एज फॉलोज। फॉर मेंबर AB is equal to -12.5 kilonewton compression. For member BD -50 kilonewton compression. For member DE it is -37.5 kilonewton compression, ठीक है। सो इट इज ओनली एक्सेल फोर्स AB, BD and DE. AB is -12.5 kilonewton compression, BD is equal to -50 kilonewton compression, DE is equal to -37.5 kilonewton compression. So in this way we can draw axial force diagram, shear force diagram and bending moment diagram. So most important theory और example एग्जाम में पूछ सकते हैं, ठीक है, कि ड्रॉ shear force diagram, bending moment diagram, bending moment and axial force diagram for a rigid jointed frame। तो सिंपली इस मेथड से आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जांपल एग्जाम में आ सकते हैं। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर drawing shear force diagram, bending moment diagram and axial force diagram for rigid jointed frame structure.